देखो, स्थिति तो बहुत नाजुक है। स्थिति बहुत गंभीर है। आपने खुद भी बताया जब आप पूरा बात रख रहे थे अभी कि सरकारी डॉक्टरों ने भी कहा है और हमें एक दो दिन से और डॉक्टर स्वाइमान की टीम है वो भी हमें कह रही है कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और कभी भी किडनियां फेल हो सकती हैं। तो जब आदमी 17 दिनों से खाना नहीं खाता तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। तो कहीं दोबारा से वो चीज स्टार्ट तो नहीं हो गई है, वो बढ़ तो नहीं रही है वो चीज। उस सारी चीज का उन्होंने आज सारा चेक किया है, सारा टेस्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि स्थिति कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, स्थिति कभी भी हाथ से बाहर निकल सकती है। प्रधानमंत्री विदेश में जाके बड़े बड़े उपदेश देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। वो रूस यूक्रेन के बारे में कहते हैं कि ये जंग भी बातचीत से ही खत्म होगी, बड़े से बड़ा मुद्दा बातचीत से ही खत्म होगा, लेकिन अपने देश के किसानों को पराया मान के ट्रीट कर रहे हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ नहीं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास दो ही विकल्प हैं, या तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिन मांगों पे अनशन कर रहे हैं वो मांगे पूरी कर दी जाए, एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, या फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की कुर्बानी लेने के लिए केंद्र सरकार तैयार रहे। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। ਹੁਣ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਜਟਵਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਕ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। तमाम ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਟਣਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾੜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? देखो, स्थिति तो बहुत नाजुक है, स्थिति बहुत गंभीर है। आपने खुद भी बताया जब आप पूरा बात रख रहे थे अभी कि सरकारी डॉक्टरों ने भी कहा है और हमें एक दो दिन से और डॉक्टर स्वाइमान की टीम है वो भी हमें कह रही है कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और कभी भी किडनियां फेल हो सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए उनके वाइटल पैरामीटर्स को एक मशीन भी लगाई हुई है और वो लगातार उस पर नजर बना के रख रहे हैं।
आज अमेरिका से भी डॉक्टर आए थे जो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि मेन जो वो चेक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कैंसर के पेशेंट हैं 4 साल से। तो जब आदमी 17 दिनों से खाना नहीं खाता तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। तो कहीं दोबारा से वो चीज स्टार्ट तो नहीं हो गई है, वो बढ़ तो नहीं रही है वो चीज। उस सारी चीज का उन्होंने आज सारा चेक किया है, सारा टेस्ट किया है, और उन्होंने भी कहा है कि स्थिति कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, स्थिति कभी भी हाथ से बाहर निकल सकती है। लेकिन बड़े दुख की बात, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री विदेश में जाके बड़े बड़े उपदेश देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। वो रूस यूक्रेन के बारे में कहते हैं कि ये जंग भी बातचीत से ही खत्म होगी, बड़े से बड़ा मुद्दा बातचीत से ही खत्म होगा। लेकिन अपने देश के किसानों को पराया मान के ट्रीट कर रहे हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे। कौन सा उनका कद नीचा हो जाएगा अगर अपने देश के प्रधानमंत्रियों से, अपने देश के किसानों से वो बात कर लेंगे तो? उनका कद बढ़ेगा, देश के किसानों से बात करने के बाद घटेगा नहीं। लेकिन उन्होंने एक अहंकार पाला हुआ है और उस अहंकार के कारण वो बातचीत नहीं कर रहे। उल्टा जिस तरीके से कल रात को हमें कुछ पुख्ता जानकारियां मिली थी कि कल जो रात बीती है उसको 2 बजे केंद्र सरकार के इशारे पे मोर्चे पे बड़ा हमला होने की संभावना थी। लेकिन जब रात को ही पंजाब से, हरियाणा से, कोने कोने से नौजवान पहुंचने लग गए और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी पहरेदारी बहुत मजबूत कर दी, उसके बाद वो हमला टल गया। लेकिन वो सिर्फ कल रात से टला है। हो सकता है वो आज रात को भी हमला कर सकते हैं, हो सकता है वो कल भी हमला कर सकते हैं, कल रात को, दिन में भी हमला कर सकते हैं। लेकिन हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, आपने भी कवर किया होगा यहाँ पे, सब लोगों के अंदर एक जज्बा है लड़ने का, मरने का, मिटने का। अगर सरकार ये सोचती है, अगर केंद्र सरकार सोचती है कि हम जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हिरासत में लेके उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हिरासत में लेने से पहले हजारों किसानों के ऊपर उनको जुल्म करना पड़ेगा, हजारों किसानों को मारना पड़ेगा, उसके बाद वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक पहुंच पाएंगे। उसके अलावा वो पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ हजारों लोग जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ प्रोग्राम रहने वाले हैं ਤੁਹਾਡੇ? देखिए, कल का तो जो हमने कार्यक्रम दिया है पूरे देश भर में कि गांव स्तर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पुतले जलाए जाएं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पार्टी किस पार्टी की सरकार है। ये तमाम पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये विपक्ष में होते हैं, कुछ और कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और कहते हैं। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जहां जहां उनकी केंद्र में, चाहे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, कुछ स्टेट में कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की सरकार है, उन सब के पुतले जलाने का कार्यक्रम देश भर में दिया गया है। उसके बाद 16 तारीख को तहसील और जिला स्तर पे बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फोटो के साथ, और जो आज चिट्ठी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने खून से हस्ताक्षर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम भेजी है, वही चिट्ठी 16 तारीख को जिला अधिकारियों और तहसील अधिकारियों के माध्यम से वो राष्ट्रपति जी को भेजी जाएगी। तो ये पूरे देश में बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च होंगे और पूरे देश में एक बड़ी लहर लगातार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पक्ष में और हमारी मांगों के हक में लगातार बढ़ती जा रही है। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ? नहीं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास 2 ही विकल्प हैं। या तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिन मांगों पे अनशन कर रहे हैं वो मांगे पूरी कर दी जाए, एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, या फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की कुर्बानी लेने के लिए केंद्र सरकार तैयार रहे। और देखिए, जहां तक बात है हाई कोर्ट की या और चीजों की, हम एक बात पूछना चाह रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो चिट्ठी में भी आज लिखा है, देखिए डल्लेवाल साहब पिछले 16-17 दिनों से ज्यादा बोल नहीं रहे थे, अब भी नहीं बोल रहे, लेकिन जो आज चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी का एक एक शब्द उन्होंने लिखवाया है। कलम दोनों मोर्चों की है, लेकिन भावना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की है। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि भाई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जिंदा रहने के लिए कम से कम मूल्य, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो जीवन के अधिकार के समान है, वो राइट टू लिव के बराबर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसकी बात करता है। क्योंकि अगर हमें मिनिमम भी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे।
जैसे 1994 से लेके अब तक ऑन रिकॉर्ड 4 लाख और ऑफ रिकॉर्ड 10 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो इसीलिए ये हमारे राइट टू लिव, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा है कि आप एमएसपी ना देकर राइट टू लिव का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और डल्लेवाल साहब ने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो उसकी, जिस तरह कुछ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखिए, ये एक गैर जरूरी बयानबाजी करी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले तक हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे थे कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, जबकि सेंटर की जो संस्था है जो एमएसपी तय करती है, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो हर साल 22 फसलों का ही एमएसपी डिक्लेयर करती है। और 23वीं जो फसल है, गन्ने की फसल, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एफआर दिया जाता है। तो एक तय प्राइस मात्र और मात्र 23 फसलों का ही डिक्लेयर होता है। 24वीं फसल का तो एमएसपी भी डिक्लेयर नहीं होता। लेकिन ये बयानबाजी कर रहे हैं हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। अरे कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई संस्था तो एमएसपी डिक्लेयर ही नहीं कर सकती, वो तो सेंटर ही डिक्लेयर करती है। तो इन्होंने 24वां कहां से ले आई ये? तो बिना सर हाथ पैर की ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इनके जो ये बयान दे रहे हैं उनमें कितना विरोधाभास है। कल कृषि मंत्री आए हुए थे कुरुक्षेत्र, शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं हम 23 फसलों पे दे रहे हैं। उन्होंने 24 पे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनकी झूठ पकड़ी गई। तो और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा स्टेट गवर्नमेंटों की बात है, देखिए जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां खरीदती हैं, एफसीआई हो गया, नेफेड हो गया, एनसीसीएफ हो गया, ये एफसीआई ये संस्था स्टेट गवर्नमेंट देती है कि भाई हम इस स्टेट से इतना खरीदेंगे, वो पेमेंट करी जाती है। स्टेट गवर्नमेंटों की तो जो प्रोक्यूरमेंट की क्षमता वो बहुत कम है। जैसे हरियाणा की बात करें, हैफेड है, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है, ये उतनी बड़ी मात्रा में प्रोक्यूर नहीं करते। तो बिना सेंटर की मदद से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी इंश्योर करने के लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना सकती। ये हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ और तथ्यों के साथ हम आपको बात कर रहे हैं। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। खीरी के शहीदों को, घायलों का न्याय दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। उस मुद्दे पे कोई छोटा मोटा समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो हमारे और मुद्दे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो किसी पे कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता। और सरकार भी ये बात जानती है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो नेता हैं जो बीच का रास्ता नहीं निकालते, वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। वो कोई समझौता इस तरीके से कोई छोटा मोटा समझौता करने वाले नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा, एमएसपी गारंटी कानून अगर गवर्नमेंट बनाती है और सरकार के बीच में एक अविश्वास की इतनी गहरी खाई होगी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अविश्वास दूर होगा और एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बातचीत बढ़ेगी। इसीलिए अगर एमएसपी गारंटी कानून वो बनाते हैं तो मोस्ट वेलकम है उस चीज का। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧੂਣੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ भी उसी तरह की मोर्चाबंदी रहेगी? रोज दिन पर दिन सख्त करोगे? आज उससे भी ज्यादा मजबूत यहाँ पे पहरेदारी करी जा रही है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर सरकार ये सोच रही है कि हम डल्लेवाल साहब को हिरासत में ले लेंगे तो सैकड़ों किसानों की लाशों के ऊपर से होकर उनको गुजरना पड़ेगा, उससे पहले वो डल्लेवाल साहब तक नहीं पहुंच पाएंगे। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ तमाम ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰ किस तरह तरीके नाल देखते? देखिए, आज भी एसकेएम के और अन्य संगठनों के बहुत सारे लीडर्स आए हैं, कल भी आए थे, हमने उनका भी सत्कार किया, सम्मान किया। अगर कल को कुछ लीडर्स आते हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा, उनका भी सत्कार किया जाएगा। ये लड़ाई अकेले हमारी या जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तो है नहीं।